we have this syllabus of knitting technology, and there are 2 marks it. And these are the content of your knitting technology syllabus. So in this, basically, we will talk about the introduction and basic of your knitting. तो knitting के बारे में कुछ idea तो है तुम्हें कि knitting क्या है, knitted garments क्या होता है. तो जैसे टी-शर्ट्स है, that is one. This is your knitted fabric one. तो तुमने ओन फैब्रिक के नाम तो सुना है. ओन फैब्रिक क्या होता है? सो इन वीविंग, इफ यू सी, weaving and knitting, these are two different technologies which has been used for production of your fabric. So in knitting, we are making the fabric from your intermeshing of your single thread or single yarn. So in case of your weaving, we need the two set of yarns that has been interlaced at right angle to each other. So in case of weaving, we need to interlace two set of yarn, that could be your warp and weft yarn. The next part we will discuss, like in knitting, is what is the basic difference between your own and knitted fabric in terms of their thickness, in terms of their appearance, comfortable feels, and other parameters. The next part we will discuss in this syllabus is your classification of your knitting machines. So knitting machines has been classified according to the way the yarn has been fed and the way the production of your fabric is there. So there are basically two different types of machines that has been used. That is your warp knitting and weft knitting technologies or weft knitting machines. So under this knitting, the basic element or the basic component which has been used for production of your interlooping of your loops, that is your needles. So we will see what are the basic elements of your knitting: needles, sinkers, and the cams, by which we will get the different structures in your knitted garment. So in needles, we have basically the 3 different types of needles are there. One is your lash needle, another is your beard needle, and compound needle. And we'll see there what are the different parts of lash needles are there, beard needles, and compound needles, and what is the basic knitting cycle in this. All these needles has been there. So this is the just introductory part of your knitting, where we'll basically cover what is the basic difference between your own fabric and knitted fabric one, and the classification of your knitting machines, that is your warp knitting and weft knitting, and what are the basic elements that has been used for your knitting, that is your needle, sinker, and cams. And apart from that, we'll see what is the basic knitting cycle, what are the knit, tuck, and the floor stitches, and how they has been formed in your machine, and what are the application of these stitches in your fabric. The next part in the syllabus will basically talk about the basic weft knitted structures. Now we'll basically, as we have divided this your knitting machines into 2 parts, that is weft knitting and warp knitting. So in next part, we'll basically talk about the basics of your weft knitted structures. So what are, like in weaving also, we have the different types of structures, that is your plain, twill, satins, huckleback. So there are different types of structures. Similar type of things has been there in case of knitted one, that is your plain, reap, interlock, and purse structures. How these structures has been formed on knitting machine we will discuss. They're basically what are the different applications and the properties of these structures. Yeah. If you talk about the next part is your what are the different knitted fabric structures are there, how they can be represented. Like in weaving, if you see that there is a cross mark, if you do the peg plan and design, so there is a representation of your interlacement of your warp and weft pattern. Similar type of things is there in case of your knitted one, like we need to represent it like knit, float, and the tuck stitches, how you can represent on your different structures. And what is the basic difference between your single jersey and double jersey? Like single jersey is, I'm just giving one example, like we have the inner garments, that is normally that is your single jersey fabric, and there are double jersey structures by which there are 2 different cam systems which has been used in the double jersey structures.
And what are the different derivatives? You'll see like Pearl, interlock. These are the type comes under your GC structures. Next part we'll discuss about how we can calculate the production of your knitted machines. In earlier times, we are seeing how we can calculate the production of your weaving or loom. Similar type of things we'll do in case of your web knitted machines. What are the, like in case of own fabric also, there are the faults and how these faults can be, what are the causes of their fault and remedies we know. Similar type of things we'll see in case of your knitted fabric. What are the different fabric faults are there, and what is the reason or causes for that fabric fault to be generated, and what are the remedies, how we can avoid that fabric fault, we'll see in this part. And if you see, the next part is your knitted fabrics geometry. How, like in case of own fabric geometry, how this fabric interlacement patterns and other things are there. So in that case, how much area of your yarn fabric has been covered by your yarn, that we normally call as the fabric cover. So in case of your knitted fabric, that terminology we call as the tightness factor. Like in case of weaving, we call it as the fabric cover. While in case of your knitted fabric, it has been terminalized as your tightness factor. So after the weave knitting structures, we basically cover the basic of your warp knitted structures. So warp knitting जो है basically जो हम use करते हैं in technical textile space, most of the times that warp knitted structures has been used for the certain specific applications, like your automotive textiles, जैसे कार के interior है, seat covers and other different structures which has been manufactured by your warp knitted structure, warp knitted fabric. So how this fabric has been formed, how the loop formation has been taken place in your warp knitting, and their design structures. So in warp knitting also we have the two different types of machines. That is, one your tricot system, another is your Rassel system. Tricot and Rassel. These are two different types of machines which has been used in case of your warp knitting. So in that we basically cover what are the knitting elements, what is the knitting cycles, and tricot. The next part in this warp knitting is, will you see, like similar to your web knitted structures, we have the different structures in case of your warp knit also. That is your Atlas, lock knit. So what are the different niche structure, warp knitted structures? What are the conventions for the representation of their structures? And lastly, we'll see the application and the calculation part of your warp knitted fabric. So this is the generalized overview of your knitting technology syllabus. So this is your 2 credit subject, and the maximum marks is 100. So I will just give you the brief difference between your own fabric and knitted fabric and what is the knitting. तो आज के लिए इतना ही, just I'm दूंगा मैं brief. So we'll see what is knitting. So just today we'll basically talk about the knitting terminologies which has been there. स्क्रीन तो दिख रही है knitting terminologies की? Yes, sir. So now we'll basically talk about the what is knitting. So knitting, जैसे मैंने पहले बोला था, this is your intermeshing of your loops of yarns. तो यहाँ पे क्या है, सिंगल yarn से हम fabric loops बनाते हैं, and from that your fabric has been prepared. जैसे हमारा weaving के केस में हमें क्या करना पड़ता है, we need to have the 2 set of yarn. एक warp thread जो तुम्हारा beam से आ रहा है, that is longitudinal thread, and traverse thread जो होता है तुम्हारा web. तो वहाँ पे 2 yarns intermesh कर रहे थे, and we are forming the fabric. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, knitting जो है your intermeshing of your loops. तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे तुमने
पुराने इसमें टाइम में देखा हो कि 2 नीडल्स लेके स्वेटर्स बुनते थे, सो दे आर अल्टीमेटली फॉर्मिंग द लूप्स। तो एक ही सिंगल धागा होता था, that yarn is your single one, and from that 2 needles they are using and then making the loops, and whole structure तुम्हारा एक ही yarn से बनता था, so that is your knitted one। तो जो भी तुम्हारे इनर गारमेंट्स या स्वेटर्स एंड अदर डिफरेंट स्पोर्ट्स एलिमेंट्स हैं, दैट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय योर knitted one। तो यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजीज मैंने बताई थी, वार्प निटेड एंड वेब निटेड। तो बेसिकली यहाँ पे वार्प एंड वेब ऐसे कुछ नहीं होगा, बट उसको जो है वे ऑफ फैब्रिक प्रोडक्शन जो है उसके हिसाब से उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है। अगर फैब्रिक तुम्हारा इन द डायरेक्शन ऑफ योर फैब्रिक फॉर्मेशंस, अगर तुम यार्न फीड कर रहे हो, सो दैट इज योर वार्प निटिंग, एंड इफ यू आर फीडिंग द यार्न अक्रॉस द प्रोडक्शन ऑफ योर फैब्रिक, so that is your web knitted structures। now we'll basically see जनरल टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे निटिंग में यूज किए जाते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर्स होता तो हमारे यहाँ पे क्या वार्प वेब बोलते हैं ना, तो यहाँ पे वार्प एंड वेब नहीं है, सो यहाँ पे है तुम्हारा कोर्सेस एंड वेल्स। तो कोर्सेस क्या होते हैं, वेल्स क्या होते हैं, तो हम ये जस्ट आज के लिए मैं इंट्रोडक्टरी तुम्हें एक टर्मिनोलॉजी बता दूंगा कि क्या होता है इसमें। तो कोर्स जो है, इट इज योर rows of loop across the width of the fabric। तो यहाँ पे तुम्हें एक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे इसमें, तो ये जो तुम्हारे रोज दिख रहे हैं, ये एक रो है, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 4th रोज। तो यहाँ पे जो एक जो लूप बन रहा है, लूप का स्ट्रक्चर जो बन रहा है दिख रहा है यहाँ पे। yes sir। ये एक सिंगल जो है एक कोर्स हो गया, ये दूसरा कोर्स, ये 3rd एंड दिस इज योर 4th कोर्स। तो ये जैसे तुम्हारा वेफ्ट यार्न होता है ना, बट यहाँ पे क्या है, सिंगल यार्न ही है, बट यहाँ पे जो रोज ऑफ लूप्स जो फॉर्म हो रहे हैं अक्रॉस दी विड्थ ऑफ दी फैब्रिक, सो दैट इज योर कोर्स। यहाँ पे हमारे कोर्सेस कितने हैं, यहाँ पे दिख रहा है इस स्ट्रक्चर्स में, यू हैव द 4 कोर्सेस, ये 4 rows of loops has been formed across the width of your fabric। तो ये जो एक इंडिविजुअल जो लूप बनता है ना, ये जो है दिस इज अ सिंगल लूप। तो उसमें जो होता है, देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स। एक होता है ये हेड पार्ट, यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ ऊपर देखो, ये हेड पार्ट होता है, these are the different parts, and this is your foot part, heads, legs, and these are the foot part। तो ये एक तुम्हारा सिंगल जो लूप है, that is composed of 1 head, 2 legs and 2 foot part। तो ये इससे बनता है, एंड जो इनिशियली जो ऊपर वाला जो पार्ट है, हेड, 1 हेड एंड 2 legs, ये जो 2 legs है, that has been produced by your sinker needle loop। ये मैं आगे बताऊंगा कि एक्चुअली क्या है, जस्ट अभी ब्रीफ तुम्हें दे रहा हूँ कि कोर्सेस क्या होगी, ये कोर्सेस होगी। अब इसमें क्या है, वेल्स जो है, तो वेल्स आर दी वर्टिकल कॉलम्स ऑफ योर नीडल्स दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइंस द विड्थ ऑफ फैब्रिक। तो यहाँ पे वेल्स कितना है, अब एक बार क्लियर करना पूरी स्क्रीन। तो जो हमने पहले देखा था 1 2 3 4, ये तुम्हारे कोर्सेस थे। अब वेल्स जो है, दीज आर दी वर्टिकल कॉलम्स। तो ये एक तुम्हारा अगर देखोगे, दिस इज योर 1 वर्टिकल कॉलम, ये तुम्हारा सेकंड है, दिस इज योर 3rd वन, दिस इज योर 4th। ये ऐसे एक्चुअली इफ यू सी, तो ये एक वेल्स हुआ, फर्स्ट वन, दिस इज योर सेकंड वन। ये वर्टिकल कॉलम्स जो बने हैं, कॉलम्स ऑफ लूप्स, दैट वी कॉल एज द वेल्स। तो ये कितने हो रहे हैं, अगर काउंट करोगे 1 2
3 4, this is your 5, your 6 7 and 8 कॉलम्स यहाँ पे बने हैं. सो दीज आर दी टोटल. अगर वेल्स अगर काउंट करोगे, दिस इज योर टोटल 8 वेल्स. तो ये एक वेल्स हुआ पूरा कंप्लीट. ये सेकंड, अगर लूप्स देखोगे लूप्स के हिसाब से, दिस इज योर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6 7 एंड 8. तो टोटल वेल्स कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. एंड कोर्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 4. तो इसको भी हम जैसे तुम्हारा नंबर ऑफ वार्प्स एंड वार्प थ्रेड्स एंड नंबर ऑफ वेब थ्रेड्स पर इंच हम या पर सेंटीमीटर हम काउंट करते हैं, ईपीआई एंड पीपीआई. तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, वेल्स और कोर्सेस भी हम काउंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ कोर्सेस 1 सेंटीमीटर में तुम्हारे बने हैं. तो जैसे अब मैं अभी ये 1 by 1 सेंटीमीटर अगर पकड़ूंगा तो कितना हो रहा है, यहाँ पे 4 अगर कोर्सेस पकड़ोगे, ये 1 सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ कोर्सेस बनते हैं उससे भी हम करते हैं कोर्स पर सेंटीमीटर उसको मेजर करते हैं. Similarly, wells has been counted in wells per centimeter. जैसे हम ends per inch, picks per inch या ends per centimeter, picks per centimeter हम काउंट करते हैं, वैसे यहाँ पे courses और wells हम मेजर करते हैं कि how much number of courses are there and how much number of wells are there in per square inch or per square centimeter, per centimeter. और उसकी जो stitch density या जो हम बोलते हैं that is the total number of लूप्स. जो अभी ये देखोगे, अगर टोटल नंबर ऑफ लूप्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर और पर स्क्वायर इंचेस जो होती है, डेंसिटी जो है, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नीडल लूप्स यानी टोटल नंबर ऑफ लूप्स इन गिवन एरिया. तो यहाँ पे एरिया कैन बी योर पर स्क्वायर सेंटीमीटर, पर स्क्वायर इंचेस आल्सो. सो दैट विल अल्टीमेटली डिसाइड द टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस और टोटल नंबर ऑफ लूप्स पर स्क्वायर इंच और पर स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट जो है स्टिच लेंथ, और अदर वर्ड्स में हम बोलते हैं लूप लेंथ. इसको क्या बोलते हैं? स्टिच लेंथ या लूप लेंथ. तो दैट इज द लेंथ ऑफ yarn इन योर knitted loop. तो ये एक तुम्हारा लूप है, तो इसमें जो है कितने लेंथ तुम्हारे yarn की लग रही है फॉर फॉर्मिंग दैट लूप. सो दैट इज योर लूप लेंथ. नेक्स्ट इज योर व्हाट इज द बेसिक difference between your warp knitting and web knitting. तो नेक्स्ट जो है हम वार्प निटिंग और वेब निटिंग का सिर्फ जस्ट ब्रीफ दूंगा कि व्हाट इज द वार्प निटिंग स्ट्रक्चर्स. तो यहाँ पे देख सकते हो वार्प निटिंग स्ट्रक्चर्स में जो या वेब यार्न जो फीड हो रहा है, दैट इज अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ योर फैब्रिक. यहाँ पे फीड हो रहा है, जो रेड कलर में दिख रहा है यहाँ पे, यू सी yarns, web yarns has been feed across the direction of your fabric formation. So in direction of your horizontal direction में हम इसको वेब को फीड कर रहे हैं and that is ultimately forming the loops. तो यहाँ पे एक्चुअली निडल होता है, तो निडल क्या होता है, एक लूप फॉर्म करता है इसके थ्रू. ये यहाँ पे जो निडल को हम फीड कर रहे हैं, we are feeding in the direction across the direction of your fabric formation. तो यहाँ पे this is the direction across the direction of your fabric formation, और horizontal direction में अगर तुम yarn को फीड कर रहे हैं, that is your web knitted one. And in case of your warp knitting, the yarn has been feed in direction vertical to each other. तो यहाँ पे देख सकते हो yarn जो फीड हो रहा है, ये तुम्हारा vertically फीड हो रहा है. In the direction of your fabric formation, yarn has been feed. तो यहाँ पे अल्टीमेटली अगर ये सिंगल yarn देखोगे, this has been feed, बट यहाँ पे क्या लगेगा, एक सिंगल yarn नहीं, बट we need to have the multiple number of set of yarns. ये यहाँ पे warp knitting में हमारा एक पूरा बीम होता है, पीछे से लगता है, और ये सारे धागे तुम्हारा पीछे से आते हैं, और एक सिंगल इंडिविजुअल यहाँ पे निडल, वो ये जो लूप फॉर्मेशन हो रहा है ये सिंगल धागे से होगा, और इसको हम क्या करते हैं, इस सारे निडल्स को एक शेगिंग और सॉगिंग मूवमेंट देते हैं, उससे ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बनता है. तो ये अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ योर फैब्रिक हम yarn को फीड कर रहे हैं.
जैसे इनिशियली हम क्या करते हैं, ये अगर सपोज ये नीडल है तो इन द डायरेक्शन अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ योर नीडल हम यहाँ पे फीड करते थे। अब यहाँ पे जो फीड हो रहा है ये यहाँ से ऐसे फीड हो रहा है, बीम से हो रहा है। ये बीम है तुम्हारा, पीछे से एक बीम लगा होगा, छोटा सा बीम होता है, एंड उससे तुम्हारा यान यहाँ पे फीड हो रहा है, फैब्रिक जो बन रहा है वर्टिकली तुम्हारा बन रहा है। तो दिस इज योर वार्प नेटेड स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली देखेंगे कि व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीडल्स, जैसे मैंने, क्योंकि ये बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट है नीटिंग का, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीडल्स व्हिच हैज बीन यूज्ड। तुमने देखा भी होगा घर में भी, अगर कोई जो पुराने वाले लोग यूज करते थे कि नीडल्स यूज करते, नीडल्स से तुम्हारा स्वेटर या इसमें बुनते थे, तो उसमें नीडल्स यूज की जाती थी। तो नीडल्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीडल्स होती है, जो एक्चुअली मशीन में है, और जो हैंडमेड जो नीडिंग होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीडल्स होते हैं। तो उसमें जो है डिफरेंट, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर डिफरेंट नीडल्स। जैसे लैश नीडल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स है, जैसे हुक पार्ट है, रिवेट है, स्पूक पार्ट है, स्टिम है, बट है, टेल है। सिमिलरली बेडेड नीडल में भी हमारे बियर्ड है, हेड पार्ट है, इसमें आई पार्ट, स्टेम एंड शेंक। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास। ये तुम्हारा कंपाउंड नीडल के है। सो we'll see in the next class what are the different components of your knitting needles and हर एक का क्या यूज है। So and then we'll see the circular knitting machine में कैसे जो तुम्हारा inner garments जो बनते हैं, and what are the knitting camps, layering camps, running camps, stitch camp, ये different types of camps that has been basically used for forming the loops। तो अभी यहाँ पे मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। तो आज हमने सारा देखा था कि तुम्हारे बेसिक knitting टेक्नोलॉजी के सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस किया था पूरा, एंड वी हैव सीन द व्हाट इज द बेसिक ऑफ योर knitting, व्हाट इज knitting, व्हाट आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ योर knitting, दैट इज कोर्स क्या होता है, वेल्स क्या होता है, वेल्स पर इंच, कोर्स पर इंच, स्टिच डेंसिटी, स्टिच लेंथ, एंड व्हाट इज warp knitting एंड weft knitting। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास विल सी what are the different types of needles has been used in knitting। किसी कुछ कहना है, कुछ डाउट है? सर वो स्टिच डेंसिटी वापस, सर वो स्टिच डेंसिटी समझ में नहीं आया। कौन सा स्टिच डेंसिटी? स्टिच डेंसिटी जो है, हाँ वो टोटल नंबर ऑफ लूप जो है, अगर एक स्क्वायर इंच पकड़ोगे, 1 स्क्वायर इंच बाय 1 स्क्वायर इंच, अगर एक स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर इंच का जो फैब्रिक अगर लोगे पूरा, तो उसमें कितने नंबर ऑफ लूप्स है उसको काउंट करना है। जैसे तुम एंड्स और पिक्स पर पिक्स काउंट करते हो, तो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का फैब्रिक ले लो, उसमें जैसे तुम वहां पे नंबर ऑफ एंड्स और नंबर ऑफ पिक्स काउंट करते हो, वैसे से यहाँ पे क्या करना है, तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ लूप्स काउंट करना है। वेल्स, टोटल नंबर ऑफ वेल्स, टोटल नंबर ऑफ कोर्स, तो उससे एक्चुअली अपने को टोटल नंबर ऑफ लूप्स पता चल जाएंगे। तो अब 1 मिनट में बताता हूँ कैसे। दिख रही है स्क्रीन? यस सर। स्लाइड चेंज नहीं हो रही है, 1 मिनट। एक मिनट।
तो मैं बताता हूँ। ये स्लाइड दिख रही है? यस सर। तो यहाँ पे क्या है, स्टिच डेंसिटी क्या कर रही है, टोटल नंबर ऑफ नीडल लूप्स इन गिवन एरिया, यानी अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ लूप्स जो है। अब मैं यहाँ पे अभी ये सपोज तुम्हारा फैब्रिक है x 1 इंच बाय 1 इंच या 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। तो इसमें जितने नंबर ऑफ तुम्हारे लूप्स हो रहे हैं, सो वो अगर तुम काउंट करोगे तो अभी मैं यहाँ पे 1 स्क्वायर इंच बाय 1 स्क्वायर इंच ये पकड़ रहा हूँ। सर कुछ नहीं दिख रहा है अभी तो। दिख नहीं रहा? जी सर नहीं दिख रहा। नहीं सर। अब देखो। यस सर। तो स्टिच डेंसिटी जो है टोटल नंबर ऑफ एंड्स लूप्स जो है, एक सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर अगर तुम फैब्रिक लोगे तो कितने नंबर ऑफ लूप्स जो है वो तुम्हें बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टिच डेंसिटी क्या है। तो अभी मैंने पहले जो बताया था कि ये इस टोटल सपोज में 1 स्क्वायर इंच बाय 1 स्क्वायर इंच ये फैब्रिक है, 1 इंच बाय 1 इंच। तो इसमें हमारे कोर्सेस पहले कितने थे, 1 2 3 और ये 4। अब ये एक आर्बिट्ररी पकड़ लो, और यहाँ पे तुम्हारे बेल्स कितने थे, टोटल 8। टोटल कितने थे बेल्ट? तो ये मेरा टोटल फैब्रिक है 1 इंच बाय 1 इंच, अभी एक आर्बिट्ररी मान लेना। तो ये टोटल तुम्हारे, अगर तुम्हें लूप्स काउंट करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने हुए हैं, 8 इंटू 4 करोगे तो अपने को टोटल पता चलेगा 8 इंटू 4 इट इज 34। तुम्हें 32 तुम्हारे लूप्स है 1 स्क्वायर इंच में। ये तुम्हारी होगी स्टिच डेंसिटी। समझ में आया ये? ये टोटल नंबर हाँ ऑफ, सर समझा। टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं उसको काउंट करने से, जैसे हर एक को इंडिविजुअल काउंट करोगे तो टाइम लगेगा, जैसे 1 2 3 4 ऐसे तुम्हें काउंट करते बैठोगे टोटल ये आएगा। इससे अच्छा तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ कोर्सेस कितने बन रहे हैं उस स्क्वायर इंच में, और टोटल नंबर ऑफ वेल्स कितने बन रहे हैं, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं। सो दैट इज योर स्टिच डेंसिटी। हम 1 स्क्वायर इंच बाय 1 स्क्वायर इंच या 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर अगर तुम फैब्रिक लोगे उसमें टोटल नंबर ऑफ वार्प एंड वेब जैसे काउंट करते हो वैसे सिमिलर टाइप है, ये स्टिच डेंसिटी बोलते हैं, या लूप डेंसिटी बोल सकते हो। स्टिच डेंसिटी हम लूप डेंसिटी भी हम बोलते हैं, जैसे हम स्टिच लेंथ को लूप लेंथ भी बोलते हैं कि एक लूप में तुम्हारी लेंथ कितनी है। ये एक सिंगल अगर लूप लोगे तो उसके लिए कितना यार्न की लेंथ चाहिए फॉर फॉर्मिंग दिस लूप। ये लूप भी तुम्हारा छोटा मोटा भी हो सकता है, एक छोटा भी ऐसे हो सकता है, दैट कुड बी अ बिगर वन। तो इसमें बिगर में तुम्हारी लूप लेंथ ज्यादा लगेगी, लेंथ ऑफ तुम्हारी स्टिच है या लूप लेंथ है उसमें यार्न जो लगेगा लेंथ ज्यादा लगेगी। एंड कोर्स जो है तुम्हारे हॉरिजॉन्टल कॉलम्स और रोज जो है, रोज को हम बोल रहे हैं यहाँ पे कोर्सेस, एंड जो वर्टिकल कॉलम्स है उसको बोल रहे हैं हम वेल्स। तो यहाँ तक तुम्हें आइडिया लग गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम पूरे बेसिक जो नीडल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीडल्स, व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड निटिंग साइकिल जो एक है वो देखेंगे। निटिंग के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग्स तो है कि निटेड गारमेंट्स क्या है, कैसे एक्चुअली, जैसे टी शर्ट्स या इनर गारमेंट्स या स्पोर्ट्स गारमेंट जो हम यूज करते हैं, इट इज बेसिकली योर निटेड स्ट्रक्चर्स, या सॉक्स है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे बट ये बनाने की टेक्निक्स अलग है। अगर टी शर्ट्स भी देखोगे तो ये जो नॉर्मल टी शर्ट्स में जो इन ये वाला पार्ट है कॉलर जो है, दिस इज मेड ऑफ डिफरेंट निटेड मशीन, जो फ्लैट निटिंग मशीन से बनती है अगर कॉलर देखोगे। और जो ये अदर पार्ट्स है दैट इज योर मेड ऑफ योर वेब निटेड स्ट्रक्चर्स, और सर्कुलर वेब निटिंग से बनता है। तो कॉलर बनाने के लिए अलग स्ट्रक्चर्स की भी वहां पे
जो थिकनेस और जो स्ट्रक्चर्स है, दैट इज योर डिफरेंट पार्ट। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीडेड नीटिंग गारमेंट्स भी है, वो हम देखेंगे कौन कौन से टाइप ऑफ नीटिंग मशीन्स है। एंड ये वन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अब तो बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं कि तुम्हारा बेसिक नीटिंग टर्मिनोलॉजीज तुम्हें पता होनी चाहिए, कोर्स क्या है, वेल्स क्या है, लूप लेंथ, लूप डेंसिटी, वो कवर फैक्टर हम जैसे वीविंग के केस में बोलते हैं, वही यहाँ पे क्या करते हैं हम टाइटनेस फैक्टर बोलते हैं उसको, कि जितना तुम्हारा यार्न टोटल फैब्रिक में कितना एरिया तुम्हारा यार्न ने कवर कर दी है, दैट इज योर टाइटनेस। तो आज के लिए यहाँ तक ही स्टॉप करते हैं। आई होप कि सबको तो ये टर्मिनोलॉजी तो पता चल गई हो कि क्या है, नहीं है तो थोड़ा बहुत उसमें से देख लेना, ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है पार्ट्स नीटिंग में। तो अभी थोड़ा अटेंडेंस मार्क कर लेना।